ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵੇਖੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਵੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਯਵੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੁਆ ਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15-16 ਸੂਟ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਈਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੂਟ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਕਤ ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 103 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਆ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਭਾਵ ਆ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੋਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਾਈਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਮਨ, ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ क्या बोलते भरा वास्ते दुआ कर रहा, कोई अपनी मम्मी वास्ते दुआ करने ਲਈ बैठा। तो मेरे दिल की तमन्ना है कि जो परमेश्वर ने मेरे ते फजल किया आ, मैं तुहानूं नाल लैके चलना। मैनू प्रभु यही उम्मीद करता है कि जो मैं तेरे ते फजल किया आ, हुण तू दूसरिਆਂ ਲਈ दुआ कर। ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग इस गल 'ਚ फेल हो गए ने। बहुत सारे मसीही दूसरिਆਂ ਦੇ घर तक नहीं जाते। वो कहते नहीं, वो मेरे मुंडे के जन्मदिन ते नहीं आया, मैनू उन्हें 10 रुपये नहीं मेरे बेटे ने दिते। भाई तू जन्मदिन मनाया क्यों ही? तेरे मुंडे ने जम के किहड़ा तीर लाता? समझ गए ना। मैं एक दिन एक बंदा कहती, एक भैन कहती मेरे मुंडे नूं विश नहीं किया, मेरा मुंडा 15-16 साल का हो गया, तो तुसीं जन्मदिन विश नहीं किया। तो मैं कहा तुसीं पैदा ही क्यों किया ही? तुसीं मैनू दुखी करने वास्ते पैदा किया ही। मैं कहना मेरे विआह की सालगिरह की विश मैनू करो चाहे ना करो, कोई मेरे जन्मदिन ते खुश होवे चाहे ना होवे, पर मेरा प्रभु जदों मैं बपतिस्मा लिया तो वह खुश हो गया। हुण मैनू लोकां दी इस गल दी डुप्लीकेट खुशी की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी तो उम्मीद ना रखो, होए मैं जन्मदिन तो तू जम के की कीता, पाप ही कीते। समझ गए? उस जन्मदिन की खुशी मना जिस दिन तू परमेश्वर च जुड़ी, तो वो दिन दस्या कर कि मेरा जन्मदिन आ दिन आ, उस दिन मेरा नवा जन्म होया सी। बाइबल कहती जिन्ना चिर तू नवा जन्म नहीं पाउंदा, उन्ना चिर तू स्वर्ग के राज च दाखल नहीं हो सकता। सानू नवा जन्म की खुशी मनाउणी चाहिदी है। सानू अपने पुराने जन्मदिनां ते लड़ना नहीं चाहिए। बाई तेरे विआह ते कोई आए, किन्ने जने आए ही कईयां दे विआह ते मैं कहना जी कईयां ने तो कहता पास्टर जी साडे विआह ते ना 400 बंदा ही। दुनिया ने वेख कहंदे लागों दी नंग जाके कहंदे ऐदां दा विआह किसे दा नहीं होया। हुण उहनूं देख पुछ के लोकां नूं पुछो, घर वाला दिखा उहनां नूं, है ना, करो अगे भी आ उही आ बांदर जिहा ਜਿਹੜਾ ना ਹੁਣ मारदा नाले कुटदा नाले इन्नी बेइज्जती करदा, इन्ना लड़दा झगड़दा। तो फिर वो दुनियावी ਜਿਹੜੀਆਂ बरकतां आ, ਜਿਹੜੀਆਂ दुनियावी चलाकियां, दिखावटीपन ਜਿਹੜਾ आ, वो सानू कदे बरकत नहीं दे सकदा। ओरिजिनल ये आ कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर खुश होवे, प्रभु प्रसन्न होवे। ਆਪਾਂ बाहरी दिखावटी पिछे बहुत सारे लोग नाश होंदे जा रहे हैं। अज बहुत सारे घर लुटे गए ने, घर परिवार नाश हो रहे सिर्फ बाहरी दिखाउण करके। बाहरी दिखावटी जीवन परमेश्वर नूं पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता अंदर तो तू आ, अंदर तो झुक जा, नीवा हो जा परमेश्वर अगे। तो अगे वचन नहीं पढ़ते हैं, लूका दी इंजील दे अंदर ही जो पढ़ते हैं तो उत्थे परमेश्वर ने धर्मी ते पाप, धर्म ते पाप विच अंतर करके दिखाया। दोने बंदे दुआ कर रहे, अपनी उंगलियां खड़ियां करो, दो बंदे, है ना। तुसीं ये चिन्ह पता कदों बनाउंदे आ? मैं जित गया, मेरा जित हो गई, मैं तो नाम लै लिया। पर खुदा भी उहदे कोलों भी ये हैगा। वो कहता है कि उन्हें यकूब नाल प्यार किया तो ईसाऊ नाल उन्हें बैर किया। लेकिन की खुदा बैर करता है? नहीं। जिहड़ा ईसाऊ सी वो हमेशा शरीरक बरकतां दे पिछे गल करदा ही, लेकिन जिहड़ा यकूब सी वो आत्मिक बरकतां दे पिछे भजदा ही। मेरे प्रियो, इत्थे ये व्यक्ति शरीरक बरकतां ते घमंड करदा है। शरीर ते मान नहीं करना चाहिए। शरीर अज सोहना आ, कल नूं ते पिचके अंबरगा होना है। अज तो तुसीं देखो पास्टर साहब तुहाडे सामने बड़ा वधिया हट्टा कट्टा बैठा है, पर अज तो 20 साल बाद वेखिओ पिचके होने, दंद भावें होने चाहिए नहीं, उहदे ते काहदा मान करना है। अज जिहड़े पैसे उत्ते बैठे हैं असीं, जिहड़े धन उत्ते बैठे हैं, जिहड़ी रिश्तेदारी ते बैठे हुए हैं, रिश्ता तो एक एक करके हौली हौली जिद्दां मक्खियां नहीं उड़दियां शहद दियां, हौली हौली करके उड़दियां जाणियां तेरे लागों। ते तू कल्ला ते तू रह जाना है, ते तैनूं खड़ना भी कल्ले नूं आ। ते फिर तू मान किस गल ते करके दुआ करेंगा? इस करके बाइबल सानू कहती है कि अंतर करदा आ परमेश्वर पाप ते धर्म दे विच। पापी ते धर्मी च की फर्क आ? जिहड़ा यहूदी आ वो कहंदा वो यहूदी आ जिहड़ा दिल तो यहूदी है। बाहरों यहूदी बनना नहीं है, अंदर तो यहूदी बनो। जे तुसीं यसू मसीह दे दर ते आ ही गए ना, अंदरों मसीह बनो। फिर जदों तुसीं अंदर तो साफ हो गए ना, तो बाहरों अपने आप ही साफ हो जाना है। जदों अंदरों ही साफ नहीं है तो दुआ तुसीं जिथे मर्जी खड़े होके कर लो। ये मंदिर च दुआ कर रहे ही, तुसीं ते चलो शुक्र है अपने घर बैठे होए आ। ये मंदिर च दुआ कर रहे सी रब दे घर विच आके, लेकिन मनोभाव वखरे वखरे। इस करके जे असीं बदलना चाहुंदे आ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪੀਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਪੀਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਧਰਮੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦਾ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਦੇ 14ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 14ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, मैं तुमसे कहता हूँ वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। जदों घर गया तो की बन के गया, धर्मी। तो जदों प्रभु के भवन च दुआ किदां कर रहा ही, प्रभु मैं पापी हाँ, प्रभु मैं गुनाहगार हाँ, प्रभु मेरे मैं तो बिल्कुल तुच्छ बंदा हाँ, मैं तो निकम्मा हाँ, प्रभु मैं तो गालां कड्ढण वाला हाँ, मैं तो शराबी हाँ प्रभु जी। तो जेड़े अगे हो के बैठे हुए ना दसवंध देण वाले, उन्होंने कहते तू पिछे हो जा, इनू मैं बरकत देनी है। ਜਦੋਂ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਉਡਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਮੰਡੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮੀ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਫਿਰ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਪਈ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਕਤ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਜੇ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਧਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਰਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਉਹਦੇ 7ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। 10:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਵਚਨ। तो परमेश्वर के वचन च इस तरीके ना लिखा है, फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। 15:3 हे परमेश्वर, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं, जुग जुग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है। तो परमेश्वर सच्चा आ, वो जिसनों चाहेगा वही धर्मी बनेगा। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ते विश्वास करेगा, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ अपनी जिंदगी 'ਚ जगह देगा, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर की आराधना करेगा, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ वफादार रहेगा, ਉਹਨੂੰ खुदा लास्ट ਵਿੱਚ डिकलेयर करेगा कि ये धर्मी है। लास्ट ਵਿੱਚ फैसला आएगा, अजे कोई फैसला नहीं है। आई जाओ चर्च में, जाई जाओ, फैसला अजे नहीं होया। कोई बात नहीं, गलती हो गई है, अजे फैसला नहीं होया। जे प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते तुहानूं अंतिम न्याय के बारे दसांगे कि जिदन परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा उदन तेरे लागे तू तो तेरे परमेश्वर तो इलावा कोई नहीं होएगा। तो फिर तैनूं चर्च विच भी आके इदां ही दुआ करनी चाहिए आ कि इत्थे परमेश्वर आ और मेरे तो इलावा इत्थे कोई दूसरा मैनू नहीं जानता, मेरा खुदा जानता है। इस करके बहुत सारे लोगों दी दुआवां जिहड़े मनोभाव आ वो बदलने की जरूरत है। असीं देखते हैं लूका दी इंजील दे अंदर कि परमेश्वर जिहड़ा आ उस व्यक्ति नूं धर्मी बनाउंदा आ ते नाल ही एक होर सोहना जिहा वचन भी बोलदा है, बड़े ध्यान नाल सुनना है। लिखिया, जिहड़ा अपने आप नूं वड्डा बनावेगा वो छोटा कीता जाएगा। जिहड़ा अपने आप नूं किया वड्डा बनाएगा वो छोटा कीता जाएगा। हुण कई लोग अपने घर च वड्डे बनने की कोशिश करते हैं। तीसरा यूहन्ना 9 वचन पढ़ो, दियुत्रिफिस जिहड़ा बंदा ही उहदे बारे लिखिया आ, वो कहंदा अपने आप नूं वड्डा बना रिहा सी। की तुसीं अपने घर च वड्डे बनदे हो? की तुसीं चर्च विच वड्डा बनने की कोशिश कर रहे हो? की तुसीं अपने पिंड च वड्डा बनने की कोशिश कर रहे हो? की तुसीं अपने रिश्तेदारां च वड्डा बनने की कोशिश कर रहे हो? तो नीवें हो जाना तुसीं। पर जे तुसीं सारियां दे सेवक बनोगे, सारियां दी अपने घर च स्वागत करोगे, भैन तू मेरे घर आके वचन सुन लिया कर, भैन तू मेरे घर आ मेरे फोन तो सुन लिया कर, भैन तू मेरे 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 घर च बह के दुआ कर लिया कर, भैन तू मेरी मोटरसाइकिल तेन मैं अपना मोटरसाइकिल दे दूँगा भरा, तो तू चर्च ना बंद करी। तो फिर देखी खुदा गड्डियां बनाउंदियां टाइम नहीं लाउंदा। तू तो कल्ला ही मोटरसाइकिल धुआं मार के विश्वासियों लागों निकल जाना, तो तेरे लागे मम्मी कहती रहिंदी है, तो तू होर नूं बिठा के लै जाना आ, तो नीवां तू किधर दा पाई, है ना। तो कई लोग जिहड़े आ वो नीवें नहीं हो रहे। दर दर ते ना झुको। ये नहीं है कि नीवा होने का मतलब ये नहीं कि हर जगह नीवें हो जाइए। तो कई लोगों को आदत बड़ी बुरी होंदी है, चर्च विचों निकलते सार जिथे मर्जी सिर थोड़ा झुका देना है। जे यसू मसीह दे होए तो यसू मसीह के सामने नीवें होना, होर अगे नीवें होने की जरूरत नहीं है। बाकियां दे दास बनो, उन्हां दी सेवा करो। पापां दी माफ़ी का अधिकार सिर्फ तो सिर्फ यसू मसीह नूं आ। जदों मरकुस दी इंजील 2 अध्याय पढ़दे हैं तो प्रभु यसू मसीह एक अधरंगी नूं चंगा करदे ने, ते यसू मसीह कहंदे अज तुसीं वेखोगे कि मनुख दे पुत्र नूं पापां दी माफ़ी देण दा अधिकार आ। प्रभु कोलों अधिकार आ, प्रभु कोलों पावर आ, ते तुसीं माफ़ी किहदे कोल मंगदे हो? हाँ जी, जाके किते खड़े हो के बाबा जी मैनूं माफ़ कर दे, बाबा जी कहना मेरे ते आप केस चल रहे हैं। समझ गए ना। माफ़ी मंगनी उहदे को दो जिहड़ा माफ़ी देण दी ताकत आ। समझ गए ना। हुण बाबा जिहड़ा आप जेल च बैठा वो तुहानूं की बचा लूगा? दसो। यसू मसीह मर गया तो उन्हें कोई पाप नहीं किया, इस करके वो पापियां लई मुक्ति का दाता आ। जोर चों दी बोलो मूँह खोल के, मुक्ति का दाता। यसू मुक्ति का दाता आ, यसू जिंदगी का दाता आ, यसू बचाउण वाला आ, यसू छडाउण वाला आ, यसू कोलों अथॉरिटी आ। यसू मसीह जदों मर के कबर चों बाहर आया तो उन्हें कहा स्वर्ग ते पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे को है, जिस ते चाहवां मैं दया कर सकता है। तो फिर अपना मनोभाव बदलो। शायद तुसीं परेशानी चो तो प्रार्थना का हिस्सा बन जाओ। किन्ने चाहुंदे कि मैं प्रार्थना का हिस्सा बन जावां? अपना हाथ खड़ा करके बोलो कि मैं प्रार्थना का हिस्सा बनना चाहना है। योद्धे बनो प्रार्थना दे। दुनिया दे विच कोई तलवार चलाउण वाला योद्धा आ, कोई मर के योद्धा बनिया। कईयां लोकां ने कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां नूं योद्धे कहिंदे ने, पर साडे मसीही इतिहास विच उन्हां नूं योद्धा कहा जांदा आ जिहड़ा प्रार्थना का योद्धा आ, जिहड़ा विश्वास का योद्धा आ, जिहड़ा लोकां नूं बचाउण विच युद्ध जितदा आ। अज तुसीं प्रार्थना दे योद्धे बनो। तो मूसा जिहड़ा ही ना दुआ ही कर रहा ही, कहंदा प्रभु मिस्र दे विच जिन्ने मेरे भैन भरा उन्हां नूं बचा ला, उन्हां नूं बचा ला, उन्हां नूं बचा ला। प्रभु कहंदा मैं ते बचा लूँगा, तू जा हुण उन्हां दे कोल। कहंदा मैं नहीं जाना प्रभु, मैनूं बोलना नहीं आउंदा। कहंदा तेरी जुबान मैं ठीक कर दूँगा। जे अज तुसीं आए हो ना तो कुछ बन के जाओ। अपने हाथ उठा के बोलो कि मैं प्रभु का बेटा बनने वास्ते बैठा हाँ, है ना। प्रभु का बेटा बनने वास्ते बैठे हो इत्थे, है ना।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ? ਜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਡਾਂਟਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਆਕੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਚਰਚ 'ਚ ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕਾਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਈਆਂ 3-4 ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ क्षमा ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ क्षमा ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ। हाँ चल जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सारे आ रहे हैं। हाँ माइक जरूर बंद कर लियो। आखिरी दुआ करने तो पहला सब माइक जरूर बंद कर लो। मेहर माइक बंद कर लो, सब माइक बंद कर लो सब। लखविंदर भैन माइक बंद कर लो, सर्बजीत भैन माइक बंद कर लो, सर्बजीत भैन गज्जू खेड़े वाले माइक बंद कर लो, प्रिंस भाई माइक बंद कर लो। हाँ थैंक यू। तो परमेश्वर आशीष देवे। और इस अच्छे वचन के लिए मेरा विश्वास है कि परमेश्वर दा आत्मा इस जगह के उत्ते कार्य कर रहा है और दिलों को छू रहा है। तुहाडी तरक्की इक्को ही गल 'च छुपी है, इक्को ही गल 'च तरक्की छुपी है कि सामने परमेश्वर है, वो गल ना लाउण लई तैयार है। तुहानूं और मैनूं किन्ने जने चाहते हैं कि मैं हुण बदल जावां? अपने जीवन नूं प्रभु दे अगे उठाओ, प्रभु नूं कहो प्रभु मेरे ते दया कर। जोर चोंदी अपना मूँह खोल के अपने घर विच बोलो, हे परमेश्वर दे पुत्र यीशु मेरे ते दया कर, हे परमेश्वर दे पुत्र यीशु मेरे ते दया कर। यही एक तरीका है बचन का। शायद तुसी परमेश्वर का दिल तोड़िया होवे अपनियां गलतियां दे नाल, अपनी बोल बाणी दे नाल, अपने चाल चलन दे द्वारा। शायद तुसी परमेश्वर नूं उदास कीता होवे। पर एक गल याद रखो, जे तुहानूं ये गल समझ आ गई तो समझो बहुत वड्डी तुसीं प्राप्ति कर ली है। वो प्राप्ति की है कि जिन्हें खुदा कोलों माफ़ी मंग ली उन्होंने खुदा माफ़ करता है। परमेश्वर कोलों बहुत वड्डा दिल है, परमेश्वर कोलों बड़ा रहम है, वो रहमतां दा बानी है, वो रहीम परमेश्वर है, वो जरूर तुहाडे ते दया करेगा। इस करके जदों तुसीं इत्थों चर्च विचों जाना है तो इक्को ही गल कहनी है कि प्रभु मेरे पापां नूं माफ़ करता। प्रभु की करेगा? तुहानूं क्षमा करेगा। उन्हें उस औरत नूं कहा तैनूं किसी ने पत्थर मारिया? कहंदी नहीं। कहंदा जा मैं भी नहीं पत्थर मारदा। मेरे प्रियो बाइबल दे विच लिखिया जिहड़ा मसीह दे विच आ उहदे उत्ते सज़ा दा हुक्म नहीं आ। यीशु ने तुहानूं सज़ा वास्ते नहीं बुलाया, यीशु ने तुहानूं आज़ाद करन वास्ते बुलाया। बाइबल च लिखिया जिहड़ा पाप करदा पाप दा गुलाम आ, जे पुत्र आज़ाद करेगा तुसीं तां आज़ाद होना है। जिन्ने चाहुंदे मैं मसीह विच आउणा, मैं बपतिस्मा लैणा चाहुंदा आ, मैं यीशु मसीह विच वधना चाहुंदा आ, अज अपने बिस्तर दे उत्ते जिथे भी तुसीं बैठे हो, जे नीचे फर्श ते बैठे हो तो उत्थे घुटने टेक लो। अपने घर दे विच नीचे हो जाओ हुण ते उस चुंगी लैण वाले वांगू उत्थे घुटने टेको। वो दुआ करो जिहड़ी सुनी जावे। अज तुहाडी दुआ दा उत्तर मिलना है। उत्थे घुटने टेको परमेश्वर दे अगे ते प्रभु नूं कहो मैं पापी गुनाहगार इंसान आ, मेरे ते दया कर परमेश्वर। मैं जाने अनजाने तेरा दिल तोड़िया प्रभु, मैनू बड़ी वारी तुसीं अपने भवन च आउण दा मौका दिता लेकिन मैं बदल नहीं पाया प्रभु, अज मैं बदलना चाहुंदा आ। अपने मुँह खोलो सब जन, अपनी अखां बंद करो, स्क्रीन वाल मत देखो, अपनी अखां बंद करो सब जन। अपनी अखां बंद करके रो रो के प्रार्थना करो परमेश्वर तुहाडे घरां चों बीमारियां नूं दूर करे। अगर तुसीं परमेश्वर दा मन तोड़िया आ जां परमेश्वर नूं नाराज़ कीता आ जां अपने माता पिता दा निरादर कीता आ जां तुसीं परमेश्वर दी प्रार्थना करन विच ढिल्ले हो, जे तुसीं जाणे अनजाणे जिन्नियां भी गलतियां कीतियां, अज परमेश्वर दा पुत्र यीशु मसीह हर एक नूं धर्मी बनाउण दी ताकत रखण वाला, माफ़ करन वाला परमेश्वर तेरे कोल आ। अपणियां अखां नूं बंद करके प्रार्थना करनी शुरू करो। सारियां भैणां बिल्कुल स्क्रीन वाल मत वेखियो,
कोई भरा स्क्रीन वाल मत वेखो, अपना ध्यान परमेश्वर वाल लगा दिओ, अपना दिल परमेश्वर वाल लगा दिओ। शायद एक दिन तुहानूं बपतिस्मा दे वेले परमेश्वर ने कहा सी मेरी बेटी मैं तेरे पाप माफ़ कर देते ने। वो दिन याद करके अपने जीवन नूं परमेश्वर दे अगे रखो, वो दिन याद करके अपने दिल नूं हलीम कर लो परमेश्वर दे अगे। वो जिस दिन तुसी बड़े चाह नाल बाइबल पढ़ते सी, जिस दिन बड़ी खुशी नाल तुसी वचन पढ़ते ही, पर अज तुहाडा दिल कठोर हो चुका आ लोकां दे ताने मिहणियां दे कारण, लोकां दीयां गलतियां दे कारण, अपने पापां दे कारण, अपने माड़ियां आदतां दे कारण। अगर तुसी परमेश्वर तो दूर हो चुके हो तो अपने घर दे विच ही घुटने टेक लो, जिथे भी तुसी बैठे हो अपने घुटने टेक लो फर्श दे उत्ते। परमेश्वर दा आत्मा इस चर्च दे द्वारा तुहानूं आशीष दे रहा आ, तुहाडे बेटे बेटियां उत्ते दया करेगा। प्रभु दे अगे फरियाद करो, प्रभु जो मेरे परिवार तो गलतियां होईयां ने मैं सुधरन लई तैयार हां प्रभु, मैं अपनी गलतियां नूं मनदा हां परमेश्वर। मेरे बच्चे मेरे परिवार तेरी वर्शिप दे वास्ते तैयार ने खुदावंद, हालेलुया। अपने दिलां नूं कठोर ना करो, परमेश्वर दा वचन कहंदा आ। इस करके घुटने टेको, जेड़ा अज चाहुंदा आ मेरे पापां दी माफ़ी मैनूं मिले, अपने घुटने टेको, डरन दी कोई जरूरत नहीं आ। अपने घुटने टेक के प्रार्थना करो, अपने आप नूं नीवां करो, परमेश्वर दे अधीन कर दिओ। अज दी सुबह दे समय परमेश्वर दा आत्मा एक एक गुनाहगार दे उत्ते अपनी रहम नूं बरसा रहा आ, अपनी दया नूं बरसा रहा आ। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, और रहमतां दा बानी परमेश्वर है। उन्हें तेरे चेहरे नूं नहीं वेख्या, उन्हें तेरे दिल नूं वेख्या है जदों तैनूं बुलाया उन्हें, हालेलुया। प्रभु दा आत्मा तेरे नाल कार्य कर रहा आ, तैनूं छूरिया, तेरे हिरदे नूं परिवर्तन कर रहा आ। सारियां भैणां मिल के दुआ दे विच रहो, सारे भरा मिल के दुआ दे विच रहो। अपने परिवार दे लई रो रो के प्रार्थना करो, अपने पति वास्ते रो रो के प्रार्थना करो, अपने बेटे वास्ते रो रो के दुआ करो, अपनी मम्मी डैडी दे परिवर्तन लई प्रार्थना करो। अज परमेश्वर परिवर्तन करेगा, हिरदियां नूं खोलेगा। यीशु मसीह दे नाम दे विच हिरदे परिवर्तन हो जाण, कोई भी इधर उधर ना वेखे। ये प्रार्थना दा वेला इस तो बाद समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर दा अनुग्रह तुहाडे जीवनां ते कार्य करे, हालेलुया। सारे बच्चे भी दुआ करो, भैणां भी दुआ करो, परमेश्वर तुहाडे जीवन नूं परिवर्तन करन जा रहा है। प्रभु जो भी इन्हां ने पाप कीते, गुनाह कीते ने, यीशु मसीह दे नाम ते मन परिवर्तन हो जाण, हालेलुया। इसे वक्त ही जिन्ने भी जिहदे कम्मां च रुकावट है, उहदे काम प्रभु यीशु दे नाम च शुद्ध हो जाण, हालेलुया। जिहदे परिवार च पापां दे कारण कोई खटा पटिया, यीशु दे नाम ते वो दूर हो जाए, बंधन टुट जाण, हालेलुया। जिहदे परिवार दे अंदर कोई गड़बड़ है, यीशु दे नाम ते वो गड़बड़ नूं दूर होने वास्ते प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिहड़े नशे करते हैं, जिहड़े विचार दे विच फसे ने, जिहड़े गंदियां आदतां च फसे ने, जिहड़े प्रभु माड़ियां आदतां च फसे ने, यीशु दे नाम ते वो आज़ाद हो जाण, हालेलुया। प्रभु जिहड़ा भी तेरा भरा तेरी बेटी अखां बंद करके सच्चे दिल तो दुआ कर रहा है, अगर उहदे कम्मां च जां उहनूं घर दी जगह चाहिदी आ, अगर उहनूं परिवार दे विच छुटकारा चाहिदा आ, अगर उहनूं प्यारे परमेश्वर अपने घर च सुधार चाहिदा आ, अगर वो कोई जमीन चाहता है, अगर वो कोई नौकरी चाहता है, अज उहदी जिंदगी दे विच यीशु दे नाम ते रस्ते खुल जाण, हालेलुया। प्यारे प्रभु जिहड़े बच्चे अपने माता पिता की आग्ञा नहीं मानते, उन्हां दे जीवन विच तुहाडा अभिषेक काम करे, हालेलुया। उन्हां दे मनां च तुहाडा अभिषेक काम करे, हालेलुया। पवित्र आत्मा की वड्डी प्रेजेंस तुहाडे जीवनां च कार्य करे, हालेलुया। यीशु दे नाम च बंधन टुट जाण, हालेलुया। जिन्हां ने अपने घुटने टिका के प्रार्थना कर रहे हैं, जिहड़ी बेटी अपने माँ बाप नूं माफ़ कर चुकी है, जिहड़ा भरा अपने भरा नूं माफ़ कर चुका है, जिहड़ी पत्नी अपने पति नूं माफ़ कर चुकी है, जिहड़ा पति अपनी पत्नी नूं माफ़ कर चुका है, यीशु दे नाम ते पवित्र आत्मा दी बारिश नाल भर जाण, हालेलुया। एक एक दे जीवन ते यीशु दे नाम च महिमा उतरे, हालेलुया। टुटे दिल जुड़ जाण यीशु दे नाम ते, हालेलुया। घरां दे घर बदल जाण यीशु दे नाम ते, हालेलुया। प्रभु तेरा अभिषेक तेरे बच्चों ते कार्य करे। इस वक्त खुदावंदा हर एक नूं आत्मा नाल भर देना, हालेलुया। हर एक नूं अपने रूह पाक दे मस्सा नाल भर देना, हालेलुया। अपने जाहो जलाल नाल भर देना, हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम ते प्यारे परमेश्वर खुदावंद जिन्ने भी अज रो के दुआ कीती है प्रभु जी, जिहड़ा अपने परिवार विच किसी भी परेशानी चों दी गुजर रहा है, यीशु दे नाम ते हील हो जाए, हालेलुया। अंदर तो चंगा हो जाए, हालेलुया। सारा पापां दा बोझ उतर जाए यीशु दे नाम ते, हालेलुया। सारे गुनाह दा बोझ उतर जाए यीशु दे नाम ते, हालेलुया। सब प्रकार दीयां बदकारियां नूं माफ़ कर दे खुदावंद, सब प्रकार दी गंदगी नूं माफ़ कर दे प्रभु जी। जीवन बदल जाए, आशीष नाल भर दे, हालेलुया। आओ अपनी अखां नूं बंद रखांगे, सब जन मनप्रीत नाल मिल के दुआ करके समाप्त करांगे। सारे जने अपने सिरां नूं प्रभु दी हजूरी चुका के रखांगे, मनप्रीत नाल मिल के प्रार्थना करांगे। खुदावन प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र तेरी महिमा करते हैं। शुक्र है सामर्थी है जिंदा है प्यारे परमेश्वर, वचन निदास करता है। आज दे
वचन के अनुसार सब लोग प्रभु जी अपने मना खुदा बंदा हलीम कर लें और प्यारे परमेश्वर हर एक कठोर हित